हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री exercise 8.3, and this exercise is specially based on complementary angles, or we can say the trigonometric ratios of the complement angles. So here one word, what is complement? कॉम्प्लीमेंट, और एक दूसरा वर्ड है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट इन सेंस ऑफ एंगल्स। So in very beginning you learn that if the sum of two angle, that is, let us suppose one angle is theta 1, another angle is theta 2, and if the sum of two angle theta 1 and theta 2 equals to 90 degree, then theta 1 is known as complement of theta 2 and theta 2 is known as complement of theta 1. This is the basic definition जो हमने बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ी है कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कहलाते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स मींस इफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन दे आर नोन एज complement to each other. Similarly, if one angle is theta 1, another angle is theta 2, and if the sum of these two angle equals to 180 degree, if the sum of two angle is equals to 180 degree, then theta 1 is known as supplement of theta 2 and theta 2 is known as supplement of theta 1. So this is about the supplement and complement angles. Now this complete exercise is based upon the trigonometric ratios of complement angle. So let us discuss what do you understand by complement angles or trigonometric ratios of the complement angle. So let us suppose, थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं यहाँ पे कि let us suppose in two dimension space these are the two mutually perpendicular lines x o x dash y o y dash. If there is any line OP which inclined with initial axis at theta, then minus of theta means this is revolving in clock sense and this angle is minus of theta. So हमें क्या देखना है सबसे पहले कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है माइनस थीटा के लिए, या मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है 90 माइनस थीटा के लिए, या मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है 90 प्लस थीटा के लिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि लेट अस सपोज यहां लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर द एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ओके, सो 90 माइनस थीटा के केस में और 90 प्लस थीटा के केस में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालना है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करने हैं तो साइन विल बी कन्वर्ट इनटू कॉस एंड कॉस विल बी कन्वर्ट इनटू साइन, ये आपको याद रखना है। Second, tan will be converted into cot and cot will be converted into tan. Similarly, sec will be converted into cosec and cosec will be converted into sec. This is the basic concept for the trigonometric functions for the angle 90 minus theta or 90 plus theta. सो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं हम sin 90 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज एनी एक्यूट एंगल।
तो साइन 90 माइनस थीटा के केस में साइन कन्वर्ट होता है आपका कोस में, और कोस जो है दैट विल बी पॉजिटिव। ऐसे ही सेकंड रेशो लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा, cos किस में कन्वर्ट होगा, 90 प्लस माइनस के केस में साइन कन्वर्ट होता है cos में, cos कन्वर्ट होता है साइन में, सो दिस विल बी इक्वल्स टू sin थीटा। Then third one is similarly if we have to write tan 90 minus theta, then tan is converted into cot and cot is converted into tan, so tan 90 minus theta will be equals to cot theta. Fourth will be cot 90 minus theta will be equals to tan of theta. Similarly fifth function is sec 90 माइनस थीटा के लिए फंक्शन क्या होगा, sec 90 माइनस थीटा will be equals to cosec थीटा, and sixth one is cosec 90 minus theta will be equals to sec of theta. So these are the first 6 trigonometric functions for the angle 90 minus theta. नाउ 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, अभी मैंने आपको देखिए यहाँ बताया, बहुत सीरियसली समझिए कि लेट अस सपोज O कोई पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट P कोई पॉइंट है यहाँ पर, और ये OP एक रिवॉल्विंग लाइन है जो इनिशियल एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बना रही है। अब लेट अस सपोज ये रिवॉल्व होते हुए ये लाइन अगर y पॉजिटिव एक्सिस पर आ जाती है, देन थीटा कितना हो जाएगा आपका, थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 के बाद ये वापस रिवॉल्व होकर के लेट अस सपोज इस पोजीशन Q पर आ जाती है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा का मतलब लाइन कहां पे है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बताए थे तो मैंने बताया था कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए अपन शॉर्ट में लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है तो वहां साइन पॉजिटिव होता है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो वहां टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो वहां पर कोस पॉजिटिव होता है। अब देखिए ऑल पॉजिटिव मींस ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन पॉजिटिव मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा, तो बाकी 4 नेगेटिव होंगे। यहाँ टेन पॉजिटिव का मतलब टेन का रेसिप्रोकल कोट होता, तो टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 फंक्शंस विल बी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने पर कोस पॉजिटिव होगा, कोस का रेसिप्रोकल सेक है। बिसाइड दिस all the 4 function will be negative. So आपको याद रखना ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये कि कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब इसी को 90 प्लस के केस में देखते हैं, तो लेट अस सी 90 प्लस के केस में क्या होगा बेटे, 90 प्लस के केस में in 2 dimension let us suppose 90 plus के केस में this is the function 90 यहां से लेकर यहां तक एंगल 90 है, ये 90 प्लस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा। तो देखिए पहला फंक्शन लिखते हैं हम sin 90 प्लस थीटा। sin 90 प्लस या 90 माइनस के केस में sin किस में कन्वर्ट होता है, sin कन्वर्ट होता है cos में, तो cos थीटा। लेकिन cos के पहले sin क्या होगा, sin सेकंड क्वाड्रेंट में s पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस cos थीटा हो जाएगा। फिर सेकंड लिखिए, अगर मुझे cos 90 प्लस थीटा निकालना है तो cos किस में कन्वर्ट होता है, sin में, तो sin थीटा। लेकिन cos का sin सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ लिखूंगा मैं माइनस ऑफ sin थीटा। देन थर्ड लिखेंगे अपन tan 90 प्लस थीटा, तो tan किस में कन्वर्ट होता है, कोट में, कोट, लेकिन tan तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ कोट थीटा। देन फोर्थ वन इज कोट 90 प्लस थीटा। कोट 90 प्लस के केस में कोट किस में कन्वर्ट होता है, tan में, तो tan थीटा होगा, लेकिन कोट नेगेटिव होता है, तो ये माइनस ऑफ tan थीटा हो जाएगा। Then fifth one is sec 90 plus theta, sec 90 plus theta, sec किस में कन्वर्ट होता है, cosec में,
तो कोसेक थीटा, लेकिन सेक तो नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ कोसेक थीटा। देन सिक्स्थ फंक्शन विल बी कोसेक 90 प्लस थीटा। अब कोसेक किस में कन्वर्ट होता है? 90 प्लस माइनस के केस में कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में, सेक थीटा में। लेकिन कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, और साइन सेकंड में पॉजिटिव है। सो ओनली देखिए साइन एंड कोसेक के कन्वर्टेड फंक्शन विल बी पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, अदरवाइज ऑल फोर विल बी नेगेटिव। अभी बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर आप इतने सारे फॉर्मूले एक साथ लिखा रहे हैं, हमें कैसे याद होगा? बेटे दो ही केस आपको याद रखना है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज क्या होगी, इन्हीं के बेसिस पे हम सवाल करेंगे। तो ये भी मैंने आपको वैसे एक्स्ट्रा बताए हैं, और अदरवाइज केवल आपके सिलेबस में 90 माइनस थीटा के लिए ही है। तो इतना सा याद रखिए कि जब भी 90 माइनस थीटा के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको निकालना है तो साइन कन्वर्ट होगा कोस में, कोस कन्वर्ट होगा साइन में, पहली चीज। दूसरा कोस कन्वर्ट होगा सेक में, और सॉरी क्या बता दिया मैंने, टेन कन्वर्ट होगा कोट में, और कोट कन्वर्ट होगा टेन में। देन सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट होगा सेक में। इसके लिए 90 माइनस थीटा के केस में। अब चलिए इसके बेसिस पर अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा, बहुत सिंपल है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, sin 18 डिग्री अपॉन cos 72। यहां देखिए 18 डिग्री और 72 डिग्री का सम क्या है? सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब 18 डिग्री और 72 डिग्री दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो बहुत सिंपल, पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को sin 18 डिग्री को एज इट इज रखा, नीचे cos 72 की जगह में 90 माइनस 18 डिग्री लिख रहा हूं। 90 डिग्री में से अगर मैं 18 डिग्री माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 72। तो मैंने कुछ नहीं किया, cos को एज इट इज रखा, 72 की जगह मैंने 90 माइनस 18 लिख दिया। या मैं ऐसे भी कर सकता था, कैसे? ऐसे भी कर सकता था कि मैं sin 18 को तो लिख देता 90 माइनस 72 और नीचे लिख देता मैं cos ऑफ 72 डिग्री। अब देखिए बहुत सिंपल, इन दोनों में से कोई एक चेंजेज आपको करना, या तो आप 18 डिग्री को 90 माइनस 72 लिख दीजिए, या 72 डिग्री को 90 माइनस 18 डिग्री, कोई भी एक चेंजेज आपको करना। अब देखिए यहां पर क्या फॉर्मूला, cos 90, ये जो 90 में से जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है दैट एंगल विल बी ऑलवेज एन एक्यूट एंगल। तो cos 90 माइनस थीटा, यहां फॉर्मूला क्या लग रहा है बेटे? देखो cos ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस के केस में cos किस में कन्वर्ट होता है? cos कन्वर्ट होता है sin में। तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? sin थीटा के। यहाँ थीटा क्या है? 18 डिग्री। सो इट विल बी sin ऑफ 18 डिग्री। तो एज इट इज नीचे cos कन्वर्ट हो जाएगा sin में, और थीटा कितना है? 18 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम है, sin 18 डिग्री अपॉन sin 18 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 1। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से करना हो तो अपन क्या लिखेंगे? देखो यहां पर क्या लिखेंगे? sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा? cos थीटा में। थीटा कितना है? 72 डिग्री। तो मैं यहां लिख दूंगा cos ऑफ 72 डिग्री, और डिनोमिनेटर में आप cos 72 डिग्री है, ये दोनों कट के किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिंपली आपको 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस थीटा, वेयर थीटा विल बी ऑलवेज एक्यूट एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इवैल्यूएट tan 26 अपॉन 64। देखो सीधा दिख रहा है 26 डिग्री और 64 को ऐड करेंगे तो दोनों का सम क्या है?
90 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखा देखो 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। मैं 26 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ बेटे 90 माइनस 64 डिग्री, और 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं 64 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 26 डिग्री। तो इन दोनों में से कोई एक चेंजेस आपको करना है। सो क्या चेंज कर रहे हैं बेटे यहाँ पे हम देखो 10 9 26 की जगह लिखूंगा मैं 90 माइनस 64 अपॉन डिनोमिनेटर में आपका कोड 64 आपका एज इट इज है। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा। 10 किस में कन्वर्ट होता है बेटे कोट में, तो कोट कितना हो जाएगा 64 और डिनोमिनेटर में तो कोट 64 डिग्री है। दिस विल बी कैंसिल एंड न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1। सो दिस इज द क्वेश्चन। बस अब आपको सामने केवल इतना सा फॉर्मूला लिखना है कि सिंस tan of 90 minus theta will be equals to cot of theta. So next question, evaluate cos 48 minus 42। देखिए 48 और 42 का सम किसके बराबर है, अगेन देखो क्या है 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री किसके बराबर है 90 डिग्री के। तो मैं 42 को लिखना चाहूं तो 90 माइनस 48 और 48 को लिखना चाहूं तो 90 माइनस 42, किसी एक को चेंज करना। अब देखिए यहां लिखते हैं पहले cos of 90 minus 42 minus of sin 42। अब देखिए cos 90 minus थीटा, थीटा क्या है 42 डिग्री, तो cos 90 माइनस थीटा के केस में cos कन्वर्ट होता है sin थीटा में, तो sin 42 माइनस sin 42। आप देखो sin 42 में से sin 42 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। दिस इज योर आंसर। तो एक स्टेप का आंसर है आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन cosec 31 माइनस sec 59। यहां आगे देखिए सिंपल 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ रहा 90 डिग्री। इसका मतलब 31 और 59 एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट, किसी एक को चेंज कर दें। देखो CSC cosec होता है तो अपन पूरा लिखते हैं cosec 31 की जगह क्या लिखूंगा 90 माइनस 59 डिग्री माइनस ऑफ sec 59 डिग्री। अब देखिए cosec 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है sec ऑफ थीटा, दैट इज sec ऑफ 59 डिग्री माइनस sec ऑफ 59 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम फंक्शंस हैं तो आंसर विल बी 0। So this is the next question. So let us move to next question. Then देखिए थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। When two or more than two trigonometric functions are in multiplication form, then उन मल्टीप्लिकेशन में आपको देखना है कि ऐसे कौन से दो एंगल है जिनका सम 90 डिग्री के बराबर है। देखिए 48 और 42 का सम 90 डिग्री है, 23 और 67 का सम 90 डिग्री है। तो अपन क्या करेंगे LHS में क्या लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एक साथ लिया और tan 23 डिग्री इंटू tan ऑफ 67 डिग्री को एक साथ ले लिया। अब मैं क्या करूंगा इन दो के कॉम्बिनेशन में किसी एक एंगल को मैं चेंज कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा tan 48 एज इट इज रखा और यहाँ tan 42 की जगह 90 माइनस 48 डिग्री लिख दिया। ऐसे ही मैं क्या करूंगा यहाँ पर tan 23 डिग्री को एज इट इज रखा और tan 67 की जगह tan ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री लिख दिया। अब देखिए ये तो tan 48 आपका एज इट इज है और ये क्या हो जाएगा tan ऑफ जो 90 माइनस 48 है वो हो जाएगा आपका cot 48 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर tan ऑफ 23 इंटू ये क्या हो जाएगा cot ऑफ 23 डिग्री। अब देखिए क्या होता है tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है हमेशा 1 अपॉन cot थीटा की। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो
tan थीटा into cot थीटा ऑलवेज 1 होता है। सेम एंगल के लिए tan into cot 1 है। tan 48 into cot 48 इन दोनों की वैल्यू हो गई 1 into tan 23 cot 23 ये भी 1। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आया 1 के, और ये किसके बराबर राइट हैंड साइड के, तो यही आपको प्रूव करना था। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सो दैट cos 38 minus cos 52 minus sin 38 minus sin 52। अगेन देखिए, एक फंक्शन ये है, दूसरा रिलेशन ये है। इन दोनों में 38 और 52 का सम 90 डिग्री है, यहाँ 38 और 52 का सम 90 डिग्री। तो एक एक फंक्शन को आपको चेंज करना। देखो, cos ऑफ 38 डिग्री एज इट इज रखा, और cos ऑफ 52 की जगह 90 माइनस 38 लिख देते हैं, माइनस sin 38 एज इट इज है, और sin 52 की जगह क्या लिख दूंगा, sin ऑफ 90 माइनस 38। अब देखिए, दिस इज द cos ऑफ 38 इनटू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा हो गया आपका, cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया आपका, cos 90 माइनस हो गया आपका sin, तो ये sin 38 हो गया, माइनस ऑफ sin 38 एज इट इज है, और ये sin 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा, cos 38। अब देखो, ये सेम फंक्शन है, ये दोनों इजीली कट रहा, इक्वल्स टू किसके हैं, 0, और यही आपका राइट हैंड साइड है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan 2a बराबर cot of a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, जहां a क्या है, कोई acute angle के बराबर है, then find the value of a। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। tan 2a will be equals to किसके बराबर दे रखा, cot of a minus of 18 डिग्री के। अब देखिए, tan 2a बराबर cot, तो मैं या तो इस tan 2a को मैं cot में कन्वर्ट कर दूं, या cot a minus 18 डिग्री को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, tan में। तो यहां क्या लिखते हैं कि देखो, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, cot ऑफ 90 माइनस 2a। अगर 90 माइनस 2a लिखता हूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री के। अब देखिए, दोनों तरफ cot फंक्शन है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो जब cot ऑफ समथिंग बराबर cot ऑफ समथिंग, इसका मतलब दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a विल बी a माइनस ऑफ 18 डिग्री। तो अब अपन क्या करेंगे, 18 को राइट में ट्रांसफर कर देंगे, तो 90 प्लस 18 बराबर थ्राइस ऑफ a। तो 108 इज इक्वल्स टू थ्राइस a। तो a की वैल्यू कितनी होगी, a विल बी इक्वल्स टू 108 अपॉन 3। सो 3 3 जा 9 एंड 6 3 जा 18, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 36 डिग्री। सो होप द क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट, if tan a बराबर cot b, then prove that a plus b बराबर 90 डिग्री। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए, से tan a is equals to cot of b। अब देखिए, इस tan a को मैं क्या लिख सकता हूं, tan a को लिख सकता हूं मैं cot 90 माइनस a will be equals to cot of b। अब देखिए, cot 90 माइनस a किसके बराबर है, cot of b के। अब देखो, cotangent of 90 माइनस a cotangent b के, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। तो 90 माइनस a किसके बराबर होगा, b के। implies that 90 will be equals to a plus of b। so this is the proof of this question कि a plus b 90 डिग्री के बराबर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sec of 4a किसके बराबर दे रखा है, cosec a minus 20 डिग्री के, where 4a is an acute angle, find the value। बहुत सिंपल क्वेश्चन।
sec of 4a किसके बराबर है? cosec a minus 20 डिग्री। अब देखिए मैं या तो sec 4a को cosec में कन्वर्ट करूं या cosec a minus 20 को sec में कन्वर्ट करूं, तो मैं यहां लिख देता हूं cosec 90 minus 4a। cosec 90 minus theta क्या होता है? sec theta, तो it will be equals to cosec a minus 20 degree. Now both side function is cosec, so angle should be same, so 90 minus 4a should be equals to a minus 20 degree. Now numerical 90 को राइट में लेफ्ट में ट्रांसफर करें और इसको राइट साइड में, तो 90 plus 20 will be equals to a plus 4a. So 110 degree will be equals to 5a. यहां से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 110 upon 5, 5 2s are 10 and 5 2s are 10, that is a की वैल्यू आ गई आपकी 22 डिग्री। So hope the question is clear. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। That's very important question. If ABC are interior angle of a triangle ABC, then so that sin B plus C by 2 is equals to cos A by 2. ABC are the interior angle of a triangle. बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये आप एक ट्राइंगल मान लीजिए, let us suppose this is the triangle ABC and angle ABC are the interior angle of this triangle. तो देखिए बहुत बेसिक डेफिनेशन, एंगल A प्लस B प्लस C किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दोनों तरफ अपन क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया राइट में और 2 से डिवाइड किया लेफ्ट में, तो a by 2 plus b plus c by 2 will be equals to 90 डिग्री। वेरी सिंपल। तो a plus b plus c by 2 किसके बराबर है? 90 डिग्री। मैंने b plus c by 2 इसलिए लिखा है कि मुझे यहाँ b plus c by 2 की वैल्यू चाहिए। अब यहां से b plus c किसके बराबर होगा? b plus c by 2 will be equals to 90 minus a by 2। अब दोनों तरफ क्या लेते हैं अपन? साइन फंक्शन ले लेते हैं। तो साइन ऑफ b plus c by 2 will be equals to साइन ऑफ 90 minus a by 2। अब देखिए लेफ्ट में साइन b plus c by 2 तो आपका एज इट इज है, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस के केस में कन्वर्ट होता है कोस में, और थीटा है आपका a by 2। यही अपने को प्रूव करना था कि साइन b प्लस c किसके बराबर है? cos of a by 2 के। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। एक्सप्रेस 67 डिग्री एंड cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। बहुत ही सिंपल। देखो साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस cos ऑफ 75 डिग्री। देखिए साइन ऑफ 67 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं मैं cos ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकता हूं। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस cos 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 15 डिग्री। देखिए ये सारे एंगल किसकी टर्म में आ गए? 0 और वेर थीटा कितना है? एक जगह आपका 23 डिग्री है, दूसरी जगह 15 डिग्री है, तो बोथ आर लेस देन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही लास्ट क्वेश्चन था। ओके, सो होप यू एंजॉय दिस एक्सरसाइज। प्लीज like this video and share it and stay with me so that we can solve next important exercise, that is exercise based on trigonometric functions. Thank you all of you.